Now let's start with the exercise 7.3 of chapter number 7, permutation and combination. So till now we have understood all the concept when the objects are distinct, when all the objects are not distinct, correct? So based on that, let's try to solve a question. Now one thing you need to keep in your mind, that you have to take your textbook with you, because it is not going to be possible for me to write the questions, correct? It will take so much amount of time. So keep your textbook with you, correct? Now let's see what we have in question number 1. I have my textbook with me. How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? Now first thing, when we are solving this exercise, don't solve it with the help of a fundamental principle of counting. Go for the permutation only, correct? Because we need to develop a practice. हमें thinking develop करनी है how we can solve the particular problem with the help of परम्यूटेशंस, करेक्ट? सो हमें यहाँ पे 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर, करेक्ट? एंड इट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9, यूजिंग द डिजिट 1 to 9, एंड सेकेंड, नो डिजिट इज रिपीटेड, नो रिपीटेशन. That's it. This much we have. Now how can we solve this particular problem with the help of a permutation? That is what we are trying to learn over here, correct? So first of all, how many objects we have? So if you look 1 to 9, so 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, correct? So what can we say? So we have 9 distinct objects. We have 9 distinct objects taken 3 at a time. Why I said 3 at a time? Because we want to form a number which is of 3 digit only, correct? Plus we don't have 0 over here, so we don't need to be worry about that. We can simply take any 3 at a time. So this will be simply what it is going to be, 9p3. Again I am going to tell you, I am not going to simplify this, that is your task, but it is compulsory to do. So it will become 9 factorial divided by 9 minus 3 factorial, that is 9 by 6. So 9 into 8 into 7 into 6 factorial divided by 6. So it becomes 9 into 8 into 7. You will find that out and write the final answer. That is how we are solving this with the help of a permutation. Here we are not using fundamental principle. If you want, you can understand. See, I am trying to tell you, you can understand with the help of fundamental principle, but when we are looking at this exercise, we will solve each and every problem with the help of a permutation only, correct? If you went for the suppose fundamental principle, so I have to fill these 3 places, correct? And in how many ways I can do? तो मेरे पास 1 से 9 डिजिट है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है. So total 9 digits are there. Out of those 9 digits, first place can be filled by 9 ways, correct? I can put any of the number here. Now repetition is not allowed, so second is 8, third is 7. So it gives us 9 into 8 into 7. You may be thinking, sir, why you are going for this? है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इजीली हो रहा है. बट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि हम इस एक्सरसाइज को परम्यूटेशन से ही सॉल्व करेंगे, नॉट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, correct? Because we need to develop the concept of permutation and combination. Now we got to know what is fundamental principle of counting. So whenever this kind of questions come, you can solve by any of the method, but try करना कि आप इसको permutation से practice करो. Am I clear? Let's go for question number 2. How many 4-digit numbers are there with no digit repeated? How many 4-digit number? Now I want to go for 4 digit with no repetition. लेकिन how many number we have और how many digits we have वो तो बोला नहीं. यहाँ पे जैसे बोला था कि 1 to 9 में से करना है. So whenever we don't have something like this, we have to consider from 0 to 9. We have to consider from 0 to 9, because if you generate a 4-digit number, somehow somewhere it will contains any number from 0 to 9 only. For example, if I say number 4021, that is no repetition, but 4 आ गया, 0 आया, 2 आया, 1 आया. So any number could be possible. 9136, correct? ऐसे 4 digit के बहुत सारे number आ सकते हैं. But whenever we have a something like this,
हाउ कैन वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम? क्यों? तो बिकॉज व्हेन यू टेक a 4-digit number and if you take any digit out of this, then your first place, that is your 1000 place, may have 0, correct? And if at that particular place अगर 0 आता है, that means it's not a 4-digit number, it is a 3-digit number, because 0 3 2 1, it is not a 4-digit, it's a 3-digit, because we cannot consider 0 first. But यहाँ पे 0 से 9 है, तो definitely 0 will be over there. Correct. So what we are going to do, we did that kind of similar problem. First, we'll find a 4-digit number with all these 0 to 9. Correct. And then what we will do? Then we will subtract. Then we will subtract those numbers in which we first fixed 0. Sorry, थोड़ा सा वो हो गया. Let me repeat again. कि पहले सारे हम 0 से 9 के लेके 4-digit नंबर फाइंड कर लेंगे और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, considering that first position is your 1000 position is filled by 0, correct? और remaining 3 places भरने के लिए बाकी के जो digits बचे होंगे उसमें से वो भर देंगे and we'll subtract it from the all 4 digits number. I'll show you how. First of all, using all 10 digits taken 4 at a time, correct? So it becomes 10p4. And now you may be thinking, sir 0 से 9 है, 9 digits आएंगे, कहाँ से 10 आ गए? अरे चेक करो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, isn't it? 1 to 9 में भी 9 और 0 से 9 में भी 9. डिजिट्स की बात करें ना, हम ऐड नहीं कर रहे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग सच थिंग्स, वी आर काउंटिंग द डिजिट्स. सो 0 to 9 में 0 भी काउंट होता है, सो इट विल बिकम टोटल 10 डिजिट्स. तो हमने क्या किया, 10p4 ले लिया. अब इसे आप चाहो तो इधर सिंप्लीफाई करो, लेटर ऑन करो, इट डजंट मैटर. नाउ कंसीडरिंग और फिक्सिंग, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, 0 at the 1000 place, at the 1000 place. 1000 place आपको पता है, अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट के लिए ऐसे ब्लॉक बना दूं, so this is 1000 place, correct? Unit, tens, hundreds and thousand. So considering 0 at the 1000 place or fixing the 0 at the 1000 place, remaining 3 places can be filled from 9. क्यों 9 बोला? क्योंकि अब 0 पहले में फिक्स है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो 0 कैन नॉट कम अगेन. तो बाकी के जो 9 डिजिट्स बचे, कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो कैन बी फिल्ड फ्रॉम 9 डिजिट्स टेकन 3 एट अ टाइम. सो दिस विल गिव अस 9p3. This will give us 9p3. So now what we will do? We'll simply subtract 10p3 minus 9p3. Correct? Hence, required permutations are or is 10p4 minus 9p3. 10p4 minus 9p3. So 10 factorial divided by 10 minus 4, 6 factorial. 9 factorial divided by 9 minus 3, 6 factorial. Very good. देखो कितना सिंपल है ना? So 10 into 9 into 8 into 7 minus 9 into 8 into 7. You can take 9 8 7 common. Correct. So it becomes 10 minus 1 and just simply do the calculation of this thing. 9 into 9 into 8 into 7. Calculate करो, आपका आंसर मिल जाएगा. So are you getting me? देखो, this is how we are supposed to solve this kind of problem. Correct. So what we did a consideration in such a way कि हमने पहले ये सोचा कि भाई हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स है and out of those 10 digits I can make this many of a 4 digit number. तो वो होंगे 10p4. लेकिन उन सारों में जो कुछ ऐसे नंबर्स आ गए जिनमें पहला 0 भी होता है, एंड इफ आई कंसीडर 0 इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, देन इट बिकम्स अ 3 डिजिट नंबर. इट इज नॉट अ 4 डिजिट नंबर. 0 3 2 1 0 5 6 3
करेक्ट, वो सारे तो 3 डिजिट नंबर हो गए, तो वी हैव टू रिमूव देम बिकॉज वी वांट अ 4 डिजिट नंबर। सो हमने उसको रिमूव करने के लिए क्या किया, 1000 प्लेस पे 0 ले लिया, रिमेनिंग 3 प्लेसेस जो है वो 9 डिजिट से फिल करेंगे क्योंकि 0 फिक्स हो गया, सो 0 कैन नॉट बी टेकन अगेन। रिमेनिंग प्लेसेस 3 है, वो 9 में से फिल करनी है, तो 9p3 एंड सिंपली 10p4 में से 9p3 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ इफ यू थिंक ऑफ दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे हेल्प करेगा, तो कि भाई पहले 1000 प्लेस पे हमें 0 नहीं रखना है, बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है। सो 0 से 9 में से एक डिजिट हट गया, कौन सा, 0, कितने बचे, 9। सो दिस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। ध्यान से देखना, आपको अभी सब पता चल जाएगा, 9 वेज। अब हमारे पास 0 आ गया वापस, बिकॉज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी में भी 0 आ सकता है, लेकिन वन ऑफ द नंबर इज यूटिलाइज्ड हियर, सो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अब वापस कितने बचे, 9 डिजिट्स। व्हाई 9 डिजिट्स, क्योंकि 0 वापस इंक्लूड हो गया, अब तक 0 इंक्लूड नहीं था। पहले जब 1000 प्लेस को फिल करना था तब हमारे पास सिर्फ 1 से लेकर 9 था, 0 नहीं था। सो 9 वेज में हम इसको फिल कर सकते हैं। अब उसमें से कोई एक नंबर यूटिलाइज हो गया, कौन सा हुआ डजंट मैटर, एक नंबर यूटिलाइज हो गया, बट नाउ 0 अगेन केम इनटू द पिक्चर, वो हमारे डिजिट्स में आ गया, तो अगेन वापस कितने डिजिट्स बचे, 9। अब एक और यूटिलाइज हो गया 8, एक और यूटिलाइज हो गया 7, यू कैन सी, है ना। So this is how fundamental principle or permutation. So whenever this kind of question comes in exam ना, तो सर या टीचर का जो भी इंटेंशन होता है टू चेक वेदर यू नो हाउ टू डू परम्यूटेशन, बिकॉज बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑफ 1 मार्क, वो कभी भी 2 मार्क में आ नहीं सकते। सो कीप इन योर माइंड whenever somebody ask, somebody इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मे भी डिफरेंट प्लेसेस से हो सकते हो, करेक्ट। तो whenever somebody ask you this kind of a question, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 1 मार्क में है, इफ पॉसिबल फिनिश इट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बट अगर पॉसिबल नहीं है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, या फिर वो 2 मार्क में या 3 मार्क में है, ऑलवेज प्रीफर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन विच एवर इज रिक्वायर्ड, करेक्ट, इफ इट इज इन 2 मार्क्स और मोर, but if it is in 1 marks and if it is possible you can finish it by with the help of a fundamental principle of counting. Am I clear? Then let's go for question number 3. प्रॉब्लम सिंपल ही है, बस आपको बस ध्यान रखना है कैसे करना है, एंड वी डिड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी while we are understanding the concept of permutation with all different distinct objects and not all distinct objects, correct. Let's have a look at third one. अच्छा चलो let's say third हम कर लेते हैं. How many 3 digit even numbers, again when we were solving with the help of a fundamental principle of counting, तो हमें पता था कि इवन डिजिट जब हम बोलते हैं, करेक्ट, या इवन नंबर बोलते हैं, तो हमारा जो फाइनल प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस होता है वो इवन नंबर से ही भरना चाहिए या इवन डिजिट से. तो यहाँ पे हमें 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है. क्या करना है? 3 डिजिट इवन नंबर made using the digits 1 2 3 4 5 4 1 2 3 not 5 4 6 7, no repetition, no repetition, है ना. और हमें ये करना है विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन, नॉट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. बट हाँ, हम चेक कर सकते हैं कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ने क्या कहा था कि भाई हाँ, अगर मुझे इवन नंबर का कोई फॉर्म करना है, कोई डिजिट जो है वो इवन नंबर का बनाना है, तो मेरे यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट ही आना चाहिए, करेक्ट. यानी कि यहाँ पे कितने इवन है? 2 4 and 6, 3 इवन नंबर आई हैव, करेक्ट. मतलब कि इस प्लेस को मैं या तो 2 रखूंगा या तो 4 रखूंगा या फिर 6. सो आउट ऑफ दिस 3 एनी वन आई कैन पुट. बट अगर मैं विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन सोचूं तो क्या कहेंगे? फॉर द यूनिट्स प्लेस we have to put or we have to take an even digit. We have to take an even digit that is either 2 or 4 or 6. So 3 even digits are there. 3 even digits are there taken
वन एट अ टाइम, क्योंकि मुझे फिल तो एक ही प्लेस करनी है ना, करेक्ट, वन एट अ टाइम। तो ये कितना आएगा 3p1। 3p1 का मतलब क्या होता है, व्हाट इज 3p1, चलो बाद में कैलकुलेट ही कर लेंगे साथ में। सो मेरे लिए देखो ये प्लेस फिल हो गई। अब मैं यहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग के साथ ये बना के क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज हमें पर्टिकुलर प्लेसेस को ध्यान में रखना है। वी नीड टू बी टेकन केयर ऑफ पर्टिकुलर प्लेसेस, बिकॉज हमें फाइंड करना है 3 डिजिट इवन नंबर। सो ये प्लेस फिल हो गई। अब रिमेनिंग बचा क्या, तो क्या देखो हमारे पास टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डिजिट थे। 6 में से एक यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगी, बचेगी कितनी, रिमेनिंग 5। और वो 5 कहाँ यूटिलाइज करेंगे, टू फिल दिस 2 ब्लॉक्स। वो 5 कहाँ यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे। अब कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ परम्यूटेशन। तो क्या लिखेंगे, नाउ द रिमेनिंग 2 प्लेसेस, रिमेनिंग 2 places can be filled from remaining 5 digits taken 2 at a time, taken 2 at a time, यानी कि वो हो जाएगा 5p2। क्या बन जाएगा वो, 5p2। अरे गेटिंग द आइडिया कैसे हो रहा है। तो यूनिट प्लेस में हमें तो इवन डिजिट ही चाहिए, तो पहले यूनिट प्लेस की बात कर ली कि भाई उसमें फिल करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3p1। और फिर बाकी के जो 2 प्लेसेस बचे, यानी कि 10th प्लेस और 100th प्लेस, उसमें अब हमारे पास कितने डिजिट बचे हैं, तो कि भाई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब कि 2 4 6 में से अगर कोई एक नंबर यहाँ पे आ गया, तो उसके अलावा के बाकी के 5 नंबर, यानी कि 1 3 7 और कोई 2 नंबर इन 3 में से, करेक्ट, टोटल 5, उन 5 से हम भरेंगे ये दोनों प्लेसेस। तो वो लिख दिया। तो वो किस तरह से होगा, 5p2। तो अब यहां पे बोलेंगे क्या, तो क्या बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। क्यों मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल बोल रहे हैं, बिकॉज फॉर अस दिस 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय दिस वे एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय दिस वे। तो दोनों जरूरी है ना, तीनों 3 डिजिट, तीनों 3 ब्लॉक फिल करने हैं, करेक्ट। सो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर, कैसे लिखेंगे, तो क्या 5p2 इंटू 3p1, 5p2 यानी 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। आर यू गेटिंग इट, है ना। अब ये 3 फैक्टोरियल तक कट हो गया। सो 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट। सो 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60। इतने परम्यूटेशन मिलेंगे आपको ये फिल करने के। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 5 4 और 3 ही आया। तो वो 3 आने का रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पे 3 इवन नंबर है, तो 3 में से आप कोई एक रखोगे तो 3 वेज, करेक्ट। अब बचे ये दोनों, अब 3 में से एक यूटिलाइज हुआ, बचे 5, तो क्या करोगे, 5 वे में यहाँ पे रख पाओगे, एक रिपीट नहीं करना है, मतलब 4 वे में यहाँ पे, बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब कि मैं स्ट्रिक्ट फॉलो करूंगा कि एक बार अगर कोई डिजिट आ गया तो वो दोनों यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक में नहीं आ सकता वो डिजिट। सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व। आर यू गेटिंग इट। देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, आराम से होंगे हमसे, करेक्ट। चलो now let me go for question number 5. I'm going to give you question number 4 as homework. I'll dictate the question for you. क्या है 4th में कि find the number of 4 digit numbers. पहले 4 digit number find करने हैं using 1 2 3 4 5. तो बहुत सिंपल है, 5p4, बात खत्म, और कुछ कर ही नहीं सकते। नो डिजिट इज रिपीटेड, इसीलिए 5p4, करेक्ट। एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन। अब उनमें से इवन कितने होंगे, तो इवन है हमारे पास सिर्फ 2 और 4। सो 4 डिजिट के अंदर हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 तरीके हैं। सो 2p1, क्योंकि 2 और 4 2 ही है। अब रिमेनिंग कितने डिजिट बच गए, 4। 4 में से कितने फिल करने हैं, 3, यानी कि 4p3, और इनका प्रोडक्ट कर लो, यानी कि बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हमें सारे इवन भी मिल जाएंगे। बस इतना सा टास्क है ना। दैट इज आई एम गिविंग यू फ्यू प्रॉब्लम, यू शुड ऑल्सो ट्राई, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि क्या करना है ना। चलो लेट्स गो फॉर द 5th one. It's a nice one.
एंड आई कैन से कि ये इंपॉर्टेंट भी है. इन अ कमिटी, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? Means suppose के 8 लोग हैं, 8 में से मैं किसी एक ही पर्सन को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नहीं बना सकता. दोस बोथ शुड बी डिफरेंट. मतलब कि मुझे सिंपल सा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में काम क्या करना है कि 8 में से मुझे सिर्फ 2 एट ए टाइम सिलेक्ट करने हैं, है ना. तो सीधे सीधा क्या आएगा 8p2, बस खत्म. अब सिंप्लीफाई कर लो फिर. 8 फैक्टोरियल 8 minus 2 6, so 8 into 7 into 6 factorial divided by 6, 8 7 56. Am I right? सही होगा क्यों? करेक्ट. So this is how we are supposed to solve this kind of questions, है ना, for 2 marks. अब देखो मैंने इसमें स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखे बट आपको लिखने हैं. I did wrote those statements in all the problems before this one. So अब मैं थोड़ा सा इस तरह से ही खत्म करूंगा एंड I'll make sure कि आप लोग जो है वो स्टेटमेंट पे ध्यान दो. करेक्ट. Let's go for the next one. Oh, let's see next one जो है वो बहुत सिंपल है. I guess हमने ऐसे प्रॉब्लम किए हैं. Find n if n minus 1 p3 is to n p4 is equals to 1 is to 9. यानी कि what are we supposed to do? We are supposed to write like this: n minus 1 p3 divided by n p4 is equals to 1 is to 9. And I don't think so कि इसमें n फाइंड करना आपके लिए कोई भी डिफिकल्ट टास्क होगा. सीधे सीधा क्या करेंगे, n minus 1 फैक्टोरियल n minus 1 minus 3 फैक्टोरियल divided by n फैक्टोरियल. करेक्ट. n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल. तो आई गेस के ये दोनों कट हो गए क्योंकि ये n माइनस 4 है, ये भी n माइनस 4 बनेगा. अब आगे क्या करोगे तो कि भाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज और डिनोमिनेटर में n को कर सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये दोनों भी कट हो गए तो बचा क्या, 9 इक्वल्स टू n, यानी कि n इक्वल्स टू 9. हाँ, ये होमवर्क में दे दिया होता तो भी चलता. ऐसा कोई इसमें कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं कि हमें करने में मतलब डर वर लग जाए कि अरे बाप रे ये क्या आ गया. तो अगर आपको ऐसा फील हुआ कि हाँ सर सही में आपने होमवर्क दिया होता तो बेटर ही रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो लेट मी गिव यू 7th वन एज होमवर्क. भाई खुद ने आर ही फाइंड करना है. जस्ट लुक एट द क्वेश्चन. 5pr equals to 2 6pr minus 1 and 5pr equals to 6pr minus 1. ऐसे 2 क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट पर्टिकुलर वन एज होमवर्क. आर फाइंड करना है, इसी तरह से करेंगे, बस आर की वैल्यू ढूंढनी है. दैट्स द केस. करेक्ट. नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन. इक्वेशन using each letter exactly once. Now यहाँ पे क्या लिखा है, using exactly once. अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप सोचते हो कि exactly once अभी क्या कैसे करें, तो इसका मतलब है कि no repetition. इसका मतलब है no repetition. करेक्ट. क्योंकि एग्जैक्टली वंस मतलब एक ही बार एक लेटर यूज कर सकते हो, दूसरी बार उसका यूज नहीं होता. इसका मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. एज सिंपल एज दैट. नाउ क्वेश्चन हैज मेड वेरी क्लियर कि आपको सारे लेटर्स लेने हैं यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन. और कितने वर्ड बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग. तो अभी तक हम क्या करते थे, विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम सॉल्व करते थे. करेक्ट. तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अ परम्यूटेशन. तो क्या बोलेंगे कि टेकन ऑल एट अ टाइम. सीधी सी बात है ना. क्वेश्चन ने बोला है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मतलब कि मुझे सारे लेटर्स यूज करने हैं. दैट मीन्स दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर परम्यूटेशन इज डन इन सच अ वे कि जितने भी लेटर्स दिए हैं वो सारे के सारे हमें एट अ टाइम ले लेने हैं. एंड इफ आई टेक ऑल द लेटर्स एट अ टाइम, हाउ मेनी लेटर्स आई हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8. करेक्ट, मैं 8 ही लिख रहा था. 8p8. So that is nothing but 8 फैक्टोरियल. और 8 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. 8 7 6 5 4 3 2 1.
इसको कैलकुलेट कर एंड यू विल गेट सर्टेन आंसर. आर यू गेटिंग? देखो मैं ये आंसर आपके लिए यहाँ कैलकुलेट कभी नहीं करूंगा, नेवर, है ना, अनलेस एंड अनटिल वो एकदम सिंपल ओरली हो जाए. तो ये ओरली नहीं होने वाला, इसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि 8 7 56 इंटू 6 में आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे या फिर कैलकुलेट करोगे 56 इंटू 6 36, तो बहुत टाइम जाएगा. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन दिस वन. सो दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व व्हेन ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड, ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एंड यूजिंग एग्जैक्टली वंस, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट. सो आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा है. टिल नाउ आई हैव गिवन यू 2 प्रॉब्लम एज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7. आई डोंट थिंक सो कि इसमें वो कोई डिफिकल्टी होगी इन दोनों प्रॉब्लम्स को आपको होमवर्क में करने में. एम आई क्लियर?